بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے عورت کا قصہ بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی ظالم اور بدبخت قسم کی عورت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جانور بنا دیا، جس کو دیکھ کر سارے گاؤں والے کی چیخیں نکل گئی، ہر کوئی توبہ توبہ کرنے لگا۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعہ کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، بغداد شہر میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا رہتا تھا، جس کی خوبصورتی کا ہر کوئی تعریف کرتا رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف عورت کا گھر تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن اس کی ملازم نے اسے کہا، آپ کی حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر گاؤں میں ایک ایسا لڑکا بھی ہے جس نے آپ کو کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے اور سیدھا مسجد چلے جاتا ہے اور واپس اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ طوائف عورت کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف اپنے شرافت بھول جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر یہ کون سا بڑا عالم اور حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس پر اس کی ملازم نے کہا، اگر آپ چاہو تو اسے آزما کر دیکھو۔ اس کے بعد وہ طوائف عورت نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کی طرح کپڑے پہن کر مسجد کے آگے کھڑی ہو گئی، تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بہکا سکے۔ لیکن ادھر وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا، نظریں جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظریں جھکا کر گھر واپس چلے جاتا، یعنی کہ کبھی بھی اپنی نظروں کو اٹھا کر اس طوائف کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ کیسا لڑکا ہے جو مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہے؟ پھر ایک دن وہ لڑکی جان بوجھ کر زمین پر گر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکے نے لوگوں سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا، ہم اسے نہیں جانتے، لیکن ہاں مجھے یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس کے بعد لوگوں نے اس لڑکی کو اٹھا کر وہ لڑکے کا گھر پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی سوچنے لگی، میرا پہلا وار تو کامیاب ہو گیا ہے، اب میں رات کی تنہائی میں اسے آسانی سے بہکا دوں گی۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر جب لڑکا گھر آیا تو لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس پر وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے شیطانی حسن دکھانے لگی۔ اس کے بعد لڑکی نے ہر طرح تیر چلائی، مگر اس لڑکے کو اپنی جال میں نہیں پھنسا سکی۔ اس لیے پھر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی بوڑھا مرد بھی ہوتا تو وہ میری حسن کا دیوانہ ہو جاتا، مگر پتہ نہیں یہ لڑکا کس مٹی کا بنا ہے، یہ میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد لڑکے نے پوچھا، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو اس پر لڑکی نے کہا، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت دکھ ہوا اور لڑکے نے کہا، میرے لیے آپ ایک غیر محرم عورت ہیں، اس لیے آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب لڑکی نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی، میں کہاں پر جاؤں گی؟ پھر وہ لڑکی سوچنے لگی، میں اس لڑکے سے گناہ کیسے کرواؤں؟ مگر وہ پھر تھک ہار کر سو گئی۔ پھر صبح اٹھ کر لڑکے نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا، ایک غریب لڑکی ہے جو میرے گھر میں رہ رہی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان حال میں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس پر مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر وہ لاوارث ہے تو تم اس کے ساتھ میں نکاح کر لو۔ اس کے بعد گھر آ کر لڑکے نے لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، میرا تو ارادہ اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں تھا، میں تو اس کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔
खैर लड़की ने यह सोच कर निकाह के लिए हाँ कर दी कि जब मेरा काम हो जाएगा मैं फिर उसके घर से भाग जाऊंगी। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं किसी बेसहारे का सहारा बन सकूं। इसके बाद लड़के ने मौलाना साहब को बुलाया और लड़की के साथ में निकाह कर लिया। अब वह लड़का तो अल्लाह का इबादत करने वाला था, इसलिए उस लड़के से जल्दी ही उसका दिल भर गया। अब वह सोचने लगी अब जल्दी ही इससे छुटकारा पाकर जल्द ही अपनी दुनिया में चले जाना है, लेकिन जाऊं कैसे, मैं तो इसकी निकाह में हूँ। इसके बाद उस बदकार औरत ने अपने मुलाजिम को एक पैगाम भेजा कि अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, इसके लिए बंदोबस्त करो। यह सुनकर मुलाजिम ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप उससे तलाक ले लो। तो उस पर वह कहने लगी ये बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, ये मुझे तलाक नहीं देगा। फिर वह बदकार औरत अपनी मुलाजिम से कहने लगी तुम ऐसा करो मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं उसको मार दूं। यह सुनकर फिर मुलाजिम ने उसे जहर लाकर दे दिया। फिर रात के वक्त वह अल्लाह वाला लड़का जब घर आया तो वह बन सवर कर उसे कहने लगी कि मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर उस लड़की ने उसके खाने में जहर मिला दिया और उसके सामने लाकर रख दिया। लड़के ने खाना खाया, फिर अपने बीवी से कहने लगा कि मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद जब रात का समय हुआ तो लड़के को तकलीफ होना शुरू हो गई। यह देखकर उसने अपनी बीवी से कहा मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है। उसके बाद वह लड़की के सामने तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया कि उसने मरते वक्त कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ा और उनकी जान निकल गई। अब उधर उसका तोता चिल्लाने लगा। उसके बाद उस बदकार औरत ने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि वह जल्दी से यहाँ पर आए। फिर उस दोनों ने मिलकर घर के सेहन में एक गड्ढा खोदा और उसे दफन कर दिया और दिल ही दिल में खुश होने लगी, चलो मुझे अब इससे जान छूट गई, अब मैं आजाद हो गई हूँ। उसके बाद वह बदकार औरत वापस अपने अड्डे पर चले गई। दोस्तों अल्लाह ताला ने उस औरत को एक मोहलत दी थी, अगर यह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपनी शोहर की तरह नेक और परहेजगार औरत बन सकती थी। यह चाहती तो अपनी आखिरत को संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया। अब तक ये एक तवाइफ औरत थी, मगर यह अब कातिल भी बन गई थी। फिर दोस्तों एक दिन फजर की नमाज में मौलाना साहब ने सोचा मेरा वो शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं आ गई। बस यही बात सोचकर मौलाना साहब बहुत परेशान हो गए और उनके घर पहुंच गए और जाकर दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजे किसी ने भी नहीं खोला। इस पर मौलाना साहब ने सोचा शायद वो अंदर सो रहा होगा, मगर ये भी सोचने लगे कि मेरा शागिर्द नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। खैर फिर वो वापस चले आए। फिर वो जोहर के वक्त भी नहीं आया तो मौलाना साहब ने किसी को उसके घर पर भेजा, तो उसने भी आकर यही बताया कि उसका घर का दरवाजा बंद है। फिर ईसा के बाद मौलाना साहब ने सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया और उसके घर के दरवाजे को तोड़ दिया। जब घर के अंदर देखा तो घर के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक तोता है जो चीख रहा है। यह देखकर सबने यही सोचा शायद यह मियाँ बीवी कहीं घूमने चले गए हैं। खैर मौलाना साहब ने अपने घर आकर उसके बारे में सोचते सोचते सो गए। रात को मौलाना साहब ने अपने ख्वाब में देखा कि उसका वह शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। यह देखकर मौलाना साहब घबरा कर उठ बैठे और सोचने लगे कि आखिर मेरे शागिर्द के साथ में क्या हुआ होगा। इसके बाद वह मौलाना साहब ने 3 रात यही ख्वाब देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है, तो वह समझ गए जरूर कुछ न कुछ बात है। इसके बाद मौलाना साहब उठे, वजू करके कुरान पाक की तिलावत करने लगे। अब जैसे जैसे मौलाना साहब कुरान पाक पढ़ते जाते थे वैसे वैसे वह राज खुलता जा रहा
रहा था। फिर अचानक उनके कान में आवाज आई, जाकर घर के सिहन में देखो। मौलाना साहब ने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और उस अल्लाह वाले के घर पहुंच गए। उसके घर की सिहन को खोदना शुरू कर दिया। खुदाई के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा वो देख कर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका शागिर्द इस हाल में मिलेगा, क्योंकि उनको कफन भी नहीं दिया गया था। फिर वो सोचने लगा कौन जालिम ने इसे कत्ल किया होगा, मगर यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस नेक लड़के की लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन किया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। यह देखकर मौलाना साहब की आंख में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद मौलाना साहब ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर दफनाने का इंतजाम किया, लेकिन सब इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर उसको मारा किसने होगा। तभी मौलाना साहब की नजरें उस तोते पर पड़ी जो खामोशी के साथ सबको देख रहा था। फिर मौलाना साहब उस तोते के पास गए और जाकर पूछने लगे, ऐ तोता, अब तू ही बता, इस नेक आदमी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, मौलाना साहब का इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमा दी। वह तोता कहने लगा, वह औरत एक तवाइफ औरत थी, वह एक जालिम थी। वो कैसे भी करके उस नेक आदमी के साथ जिना करना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास भेष बदल कर आई थी और फिर धोखे से उसके साथ निकाह कर लिया था। फिर जब उसका उस लड़के से दिल भर गया तो उसने उसे जहर देकर मार दिया। अब वह वापस अपने बदकारी के अड्डे पर चली गई है। इतना कहकर तोता खामोश हो गया। उसके बाद मौलाना साहब ने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उस तवाइफ कोठे पर पहुंच गई और जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, ऐ कमबख्त औरत, बाहर निकलो। आवाज सुनकर उस बदकार औरत की एक मुलाजिम बाहर आई और कहने लगी कि क्या आप उस लड़के का उस्ताद हैं? मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ और बाप भी हूँ। तुम उस बदकार औरत को बाहर निकालो। यह सुनकर उसकी मुलाजिम ने कहा कि मौलाना साहब, उसको अपने किए की सजा मिल चुकी है। जिस रात को वो अपने शोहर को मार कर आई थी, उस रात वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जब वह तैयार होकर बदकारी के लिए निकल रही थी तभी उसका जिस्म अचानक से बदलना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते उसका जिस्म बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब हमने उसे एक कमरे में कैद करके रखा है, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। ये सुनकर मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, देखा अल्लाह का इंसाफ। जो लोग दूसरों पर जुल्म करता है, लोगों पर ज्यादती करता है, उसका सिला अल्लाह जरूर देता है। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।